इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। राय सुनकर कि भाई ये जो वोटिंग मशीन्स का जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि इसमें मैनिपुलेशन आसानी से किया जा सकता है, ये रिलायबल नहीं है। आंदोलन धीरे धीरे ये आंदोलन कुछ वकीलों ने और कुछ और लोगों ने छेड़ा हुआ है। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ರವಿವಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರದಿಯ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯ EVM ಮಷಿನ್ಸ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ EVM ಮಿಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ EVM ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ EVM ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಸ್ವತಃ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ EVM ಮಷಿನ್ ಹುಟ್ಟಿದೋ ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ EVM ಮಷಿನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷಪೂರಿತವಾದಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಚು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯವರು ಈ EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ EVM ಮಷಿನ್ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೆರಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ BJP ಪಕ್ಷದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿನಿಂದ ಈ EVM ಮಷಿನ್ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು ಈ EVM ಮಷಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ EVM ಮಷಿನ್ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ EVM ಮಷಿನ್ಗಳ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ EVM ಮಷಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, EVM ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ 8 ಓಟ್ಗಳನ್ನು BJPಗೆ ತಿರುವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಘನತೆಯಲ್ಲ ಧಕ್ಕಿತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ CEC ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರೆ EVM ಮಷಿನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಕೀಲರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ EVM ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು EVMಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. हालांकि कोशिश करी जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बेइंतहा पैसा है, सारी और पार्टियों से मिलाकर उससे भी दुगना पैसा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में भी देख लिया, सारे कॉरपोरेट डोनेशंस बीजेपी को ही 75% से ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बात, सारा प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट सरकार के हाथ में है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अब तो जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसको भी सरकार के कब्जे में करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो ये सब तो जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने छोड़ी ही नहीं है चुनावों की, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है
इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। लेकिन ईवीएम के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में एक बहुत ही बढ़िया एक सिटीजन्स कमीशन बना जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में। उन्होंने रिपोर्ट दी सारे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनकर कि भाई ये जो वोटिंग मशीन्स का जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि इसमें मैनिपुलेशन आसानी से किया जा सकता है, ये रिलायबल नहीं है। और करीब करीब सारे देशों में, दुनिया भर में ईवीएम्स अब हटाए जा चुके हैं, वापस पेपर बैलेट पे आया जा चुका है। हाल में बांग्लादेश में भी हुआ। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला देकर बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन यही लोग पहले जब ऑपोजिशन में थे तो डिमांड करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटाइए। अब ये सत्ता में आ गए हैं और 2017 में जो वीवीपैट मशीन है उसका भी डिज़ाइन बदल दिया। उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था, उसको हटाकर एक ब्लैक ओपेक शीशा लगा दिया, जिससे कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते कि उस वीवीपैट मशीन के अंदर क्या हो रहा है, जब तक अंदर से एक लाइट बल्ब ना जले जो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद आपको पता नहीं कि उसमें क्या छपता है, क्या नहीं छपता। तो इसलिए ये बहुत अनरिलायबल है। हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन, धीरे धीरे ये आंदोलन कुछ वकीलों ने और कुछ और लोगों ने छेड़ा हुआ है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें सारे युवा लोगों को शिरकत करने की ज़रूरत है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन ये दो ऐसे इश्यूज हैं, एक तो रोज़गार का और एक ईवीएम का, जो हमारे पूरे आर्थिक व्यवस्था और हमारे लोकतंत्र के जड़ पर जाता है। इस पर तो तुरंत युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। यही मैं सब कहना चाहता था। अगर ऐसा होता है तो मुझको बचा पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएंगे। देखिए, नंदिता जी ने आपको बता दिया कि हिंदुस्तान किस संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर एक ऐसी तानाशाह सरकार है जो इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। लोकतंत्र के सारे जो स्तंभ हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, सबको ख़त्म कर रही है और अपने अधीन ला रही है। और शिक्षा का भगवाकरण और जिसको कहते हैं कि सुपरस्टिशन फैलाने वाला, झूठ फैलाने वाला, प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बनाते जा रहे हैं। ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಈ ಎರಡೂ ಜನ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಂತಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಜನ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವುದು, ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕರ್ಮ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಿಎಂನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. यानी कि शिक्षा में और कम से कम यूनिवर्सिटीज़ में कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना हो पाए, कोई जना कोई चीज़ पर सवाल ना उठा पाए, बस प्रोपेगेंडा ही चले, इस तरह की शिक्षा बनाई जा रही है। अब सवाल ये है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, खासकर जो युवा लोग हैं उनका क्या रोल है। देखिए, आज इस देश में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें युवाओं ने ही अगुवाई करी।
चाहे वो 74 के दौर में जो जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन रहा हो जिसमें युवा ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, चाहे ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो। किसी भी देश में जब कोई बड़ा मूवमेंट और निर्णायक मूवमेंट खड़ा होता है तो युवा ही लोग उसकी अगुवाई करते हैं। उसके 2 बड़े कारण हैं, बल्कि 3 बड़े कारण। पहला तो कारण ये है कि युवा लोगों को ही अपनी ज़िंदगी, वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं सोसाइटी के। हम लोगों की तो ज़िंदगी चलिए काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन युवाओं की तो पूरी ज़िंदगी उनके सामने है। तो अगर इस देश में लोकतंत्र ख़त्म होता है, सभ्यता ख़त्म होती है, क्योंकि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, सभ्यता ही ख़त्म करी जा रही है। अगर ख़त्म होती है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, जो खराब इफेक्ट है, वो युवाओं के ऊपर ही होगा। और दूसरी बात यह है कि युवाओं में ही वो एनर्जी होती है जिसकी ज़रूरत होती है कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की। तो आज इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, सब चीज़ों के बारे में आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक वो आंदोलन है जो बेरोजगारी का है, जो कि सीधा सीधा युवाओं को अफेक्ट करता है, जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है इस देश में बेरोजगारी की। उस पर तो बिल्कुल पूरा देश तैयार है, समाज तैयार है। अगर युवा लोग इस मूवमेंट की अगुवाई करें तो मुझे पूरा यकीन है कि ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन इस देश में बन सकता है। और इसके 4 स्तंभ, मेरी राय में 4 स्तंभ होने चाहिए बेरोजगारी के आंदोलन के। पहला तो ये कि रोजगार के हक का कानून बने। जैसे हम लोगों ने बोला था कि लोकपाल का कानून बने, उसी तरह से हमको कहना चाहिए कि रोजगार का हक जो है इस देश में मौलिक अधिकार है और उसको कार्यान्वित करने के लिए एक कानून बनना चाहिए कि हर जना जो कि 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र का है, उसको कम से कम न्यूनतम दर पर रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम न्यूनतम दर पर। और अगर उसको ना मिल सके तो सरकार का दायित्व है कि उसको बेरोजगारी भत्ता उसका कम से कम आधा दिलवाए। ये जो नरेगा का जो कानून है, जिसमें 100 दिन की का रोजगार रूरल लोगों में, फैमिली में 1 जने को मिलता है, उसी का ये एक्सपेंडेड वर्जन है। यानी कि हर जने को जो 21 साल से 60 साल की उम्र का हो, उसको रोजगार कम से कम न्यूनतम वेजेस पर मिलना ज़रूरी है, और नहीं मिले तो उसका आधा बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कानून है, उसका एक ड्राफ्ट मैंने बनाया भी था, वो आसानी से उसके लिए आंदोलन चलाया जा सकता है। दूसरी बात, कम से कम 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, सारे संस्थाओं में मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा। उनको तुरंत भरना चाहिए, ईमानदारी से भरना चाहिए। आजकल तो हम रोज़ देखते हैं पेपर लीक, ये वो, हर तरह की बेईमानी हो रही है। जहाँ जहाँ भर्ती करी भी जा रही है, थोड़ी बहुत बेईमानी से हो रही है। उसका एक युवा हल्ला बोल दें, उसका एक वो बनाया था ढांचा कि किस तरह से आप रिक्त पदों की भर्ती कर सकते हैं ईमानदारी से 6 महीने के अंदर। उस तरह का हम लोग फॉर्मूला बनाकर दे सकते हैं कि भाई सारे रिक्त पद की भर्ती इतनी जल्द 6 महीने के अंदर करी जाए, इस तरह से करी जाए। तीसरी बात जो नंदिता जी ने जिक्र किया कि भाई यहाँ पर अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, निजीकरण 2 तरह की संस्थाओं में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वो संस्था हैं जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, ये सब नेचुरल मोनोपोलीज हैं। मोनोपोली कभी भी कोई निजी कंपनी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट्स अडानी कंपनी को ही दिए जा रहे हैं, और रेलवे का भी निजीकरण करने की अब सरकार कोशिश कर रही है। तो
जो नेचुरल मोनोपोली सेक्टर्स हैं उसमें कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो सोशल सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमको सब्सिडी देने की ज़रूरत होती है, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ एजुकेशन तो अगर आप प्राइवेटाइज कर दें तो आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसी तरह से बैंक से लोन, अगर आप गरीब किसानों को लोन नहीं देंगे तो वो तो, अगर आपने बैंक सब प्राइवेटाइज कर दिए तो गरीब किसानों को तो लोन मिलेगा ही नहीं, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इन सेक्टर्स में जो पब्लिक सेक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि इन सेक्टर में निजी कंपनियां नहीं हो सकती हैं, हेल्थ में भी हो सकती है, एजुकेशन में भी हो सकती है, बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका कमांडिंग हाइट जिसको कहते हैं वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो तीसरी डिमांड हम लोग की ये हुई कि भाई अंधाधुंध निजीकरण जो किया जा रहा है वो बंद किया जाए। और चौथा ये कि आज बहुत बड़े संख्या में रेगुलर परमानेंट जॉब्स को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। टीचर्स के जॉब्स को, जो कि परमानेंट जॉब्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। इतने सारे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों में परमानेंट जॉब्स का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है और बहुत हो गया। ये सब बंद होना चाहिए, रेगुलर जॉब्स होने चाहिए। तो इन 4 स्तंभों के ऊपर हम लोग, कम से कम युवा वर्ग जो है, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर सकता है, बहुत ज़रूरी है।